Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, today I am covering the next topic of your chapter 4 agriculture. As in my previous video, I explained you about the agriculture and different type of farming in our country, in which I already explained you about the intensive subsistence, extensive subsistence farming, as well as the commercial agriculture. Now today I am starting from the topic that is plantation. This is also one of the type of farming, and it is including in the commercial farming. Okay, so let us read about the plantation. So plantation is a type of commercial farming. ये क्या है? Type of commercial farming, and it is a type of farming in which a single crop is grown on a large area. बच्चे ये extensive फार्मिंग का ही एक रूप है जिसमें एक लार्ज एरिया में एक सिंगल क्रॉप जो है प्लांट जो फार्मर है वो उसको सोन करता है. ठीक है. नाउ वन थिंग मोर, दैट प्लांटेशन हैज़ अ इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. व्हाट डज इट मीन? दैट in the plantation, agriculture and industry both are interdependent. एग्जैक्टली वट हैपन इन प्लांटेशन हम करते क्या हैं? देखो बच्चा, नॉर्मली व्हेन अ फार्मर इज सोइंग अ क्रॉप, देन ही harvested it after few months, and then he take the new crops in that from the same land portion. मतलब नॉर्मली फार्मर जो है सेम लैंड पोर्शन से साल में एक या दो फसल लेता है. ठीक है. बट प्लांटेशन में क्या होता है कि वंस वी प्लांटेड अ क्रॉप, हमने एक क्रॉप प्लांट कर दी, देन वी कैन टेक द सेम क्रॉप, फ्रूट फ्रॉम द सेम क्रॉप फ्रॉम नेक्स्ट 4 to 5 years. 4 to 5 years तक हम उसी क्रॉप से फ्रूट लेते रहते हैं. यहाँ पर हम उसको हार्वेस्ट नहीं कर रहे हैं. लाइक टी प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांटेशन. टी पौधा एक बार लगाने के बाद वी कैन टेक द टीज लीव्स ऑफ द टी फ्रॉम द सेम प्लांट्स फ्रॉम द नेक्स्ट 4 to 5 years. सेम इज शुगर केन ऑल्सो. शुगर केन गन्ना भी अगर हम एक बार बोते हैं तो नेक्स्ट 2 or 3 क्रॉप्स हम वहाँ से ले सकते हैं. ठीक है. तो दिस इज प्लांटेशन. That's why this agriculture and industry, because in plantation we are mainly cropping the crops there that are industrially having the importance, and they are providing raw material in respective industries. Okay, चलिए. Now tea plantation in Assam, North Bengal, coffee plantation Karnataka, banana plantation in southern part of India. So all these are the plantation crops that grown in India. Now since the production is mainly for market, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन किस लिए हो रही है? फॉर मार्केट हो रही है. अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कनेक्टिंग द प्लांटेशन एरिया इज नेसेसरी. वो हमें रिक्वायर्ड चाहिए ही है. ठीक है. प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मार्केट इज प्रेजेंट. तो प्लांटेशन एरिया में ये सब कुछ हमें प्रेजेंट मिलता है. नाउ विद दिस प्लांटेशन टॉपिक our type of farming is completed. Now the next topic is, that is, cropping pattern. According to the season, we are having 3 cropping seasons in our country. One is Rabi, second is Kharif, third is Zaid. Now one by one we will discuss about these cropping seasons of our country, in which we learn about what is Rabi, Kharif and Zaid crops, and which type of crops are under these cropping seasons. Okay, so let us come on the very first, that is Rabi. Now Rabi crops कौन सी हैं? Rabi crops, first of all I am discussing with you the features of Rabi crops. These crops are sown in winter from October to December. Sown in winter, कब बोई जाती हैं? अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बो दी जाती हैं. एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून, और अप्रैल से जून के बीच में हम इनको हार्वेस्ट कर लेते हैं. द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स आर वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड. दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स. ये इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप्स हैं.
जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश आर द मेन रबी क्रॉप्स। ये हमारी मेन रबी क्रॉप्स हैं, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ precipitation during winter months due to the western temperate cyclones help in the success of these crops। वो क्या कह रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ precipitation। अब बारिश की अवेलेबिलिटी विंटर मंथ में जो आती है बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द ग्रोइंग ऑफ दिस टाइप ऑफ क्रॉप्स। एज यू ऑल नो, हमने क्लाइमेट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि इन द विंटर हमें साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस से रेनफॉल जो है वो हमारे कंट्री में होती है, एंड दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द वीट रबी क्रॉप। वो रबी क्रॉप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेनफॉल होती है, ठीक है। नाउ द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न प्रदेश इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ रबी क्रॉप्स, ठीक है। तो ये है अबाउट रबी क्रॉप्स। आपको मेन चीज़ें जो रबी क्रॉप्स के बारे में लर्न रखनी है, दैट इट ग्रोज इन द सीजन एंड हार्वेस्टेड इन द सीजन, and the major rabi crops: wheat, barley, peas, gram and mustard. These are the major rabi crops. Okay, now come on the next topic, that is kharif. These crops are sown in the month of different part of the country in the one set of monsoon. One set of monsoon का मतलब समझते हो? Yes, one set of monsoon का मतलब समझते हो? Means at the arrival of monsoon, means in the month of June to July, अगस्त, इनके बीच में हम इन क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, एंड हार्वेस्टेड इन द सितंबर एंड अक्टूबर, और हम इसको सितंबर विद इन 2 months वी आर हार्वेस्टेड दिस। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आर पैडी, पैडी मीन्स राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट। दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। ये हमारी इम्पॉर्टेंट खरीफ क्रॉप्स हैं। राइस इज़ इन असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट खरीफ क्रॉप है, ठीक है। एंड nowadays crop is also paddy, or we can say rice is an important crop of Punjab and Haryana also. In the state like Assam, West Bengal, Orissa, these are also growing the these crops, kharif crops. Okay, चलिए, now come on the next type of cropping season. This is the Zayad crops. Zayad crops are those crops, those are grown between the seasons of Rabi and Kharif. रबी और खरीफ के बीच में, जो सीज़न के बीच में हम जिन क्रॉप्स को लेते हैं वो जायद क्रॉप्स कहलाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने वीट हार्वेस्ट की इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो बीच में हमारे पास 2 महीने होते हैं, मई और जून। वन सेट ऑफ मानसून अगर हम जुलाई में ले रहे हैं तो अप्रैल हाफ, मई और जून मिड तक हमारे पास 2 months हैं। बिटवीन दीज 2 months वी कैन टेक एनी क्रॉप। किसान जो है वो कोई भी क्रॉप ले सकता है जो कि 2 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड जायद क्रॉप्स। उनको हम क्या कहते हैं? जायद क्रॉप्स। सो लेट अस रीड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ जायद क्रॉप्स, दैट जायद सीजन इज़ अ शॉर्ट सीजन between Rabi and Kharif seasons during the summer month. समर मंथ्स के बीच में जो सीज़न आता है हम उसको जायद सीज़न कहते हैं। क्रॉप्स प्रोड्यूस आर वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल एंड फॉडर क्रॉप्स। ओके, फॉडर क्रॉप्स जो पशुओं को चारे के रूप में दी जाती हैं। तो दीज आर अबाउट आर जायद क्रॉप्स। तो हेयर वी हैव द pictures of some zayad crops. Okay, चलिए, now come on the next topic, that is major crops of our country. Students, if you remember, in this topic we have to be learn about the major crops of our country. First of all, we have to be learn about the major, कि हमने क्रॉप्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। Here we have grains, फूड क्रॉप्स, देन फाइबर क्रॉप्स। ये कुछ हमारी मेन क्रॉप्स हैं जो कि हमने डिवाइड की हैं, ठीक है। तो लेट अस रीड अबाउट द मेजर क्रॉप्स ऑफ आवर कंट्री, इन विच वी लर्न अबाउट दैट विच क्रॉप इज ग्रोन इन विच सीजन, विच टाइप ऑफ सॉयल इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्टिकुलर क्रॉप, एंड ऑल्सो दैट
temperature, climate कैसा चाहिए, and in which areas these crops are grown. We are studying about all these pattern of the major crops of our country. Okay, let us read the major crops are. Firstly, we divide these crops into three parts. One is grains, second is food crops, and third is non food crops, or we can say fiber crops. Okay, so among the grains, the major food crop grains are in grows in our country are rice, wheat, millet, maize, pulses. And the food crops are sugarcane, so oil seeds, tea, coffee, and horticulture crops. And in the fiber crops, we have rubber, cotton, jute. Okay, so this is about the major crops that are cultivated in the different part of our country. Now, what you have to be learn about the major crops? First of all, I am taking the rice. Here, we all know that rice is the major staple food of our country, especially in the southern part of the country. In the northern part, it is an important crop, but it is not the staple food of the North India. Okay, so staple food crop of majority of people in India is rice. India is the second largest producer in the world after China. तो इंडिया राइस में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का आफ्टर चाइना. इट इज़ अ खरीफ क्रॉप है. नाउ व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ टेम्परेचर? टेम्परेचर शुड बी अबव 25 डिग्री सेल्सियस एंड ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी रिक्वायर्ड होती है. रेनफॉल, राइस नीड मैक्सिमम रेनफॉल इज अबव 100 सेंटीमीटर. बारिश ज़्यादा, खड़े पानी में राइस की खेती की जाती है तो बारिश ज़्यादा की आवश्यकता होती है. तो 100 अबव 100 to 200 सेंटीमीटर्स एरियाज वी आर ग्रोइंग राइस. ओके, नाउ ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज और डेल्टाइक रीजन में हम मेनली राइस ग्रो करते हैं. बट नाउ वी आर ग्रोइंग राइस इन पंजाब, हरियाणा एंड सम पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश ऑल्सो विद द इरीगेशन फैसिलिटीज़. ओके, सो दिस इज अबाउट योर राइस. ये तो था हमारा राइस. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, राइस प्रोड्यूसिंग एरिया. These are our rice producing areas. Major rice producing areas are here in the northeastern part of the country and the southern part of the country. Okay, now come on the next crop, that is wheat. As you all know that wheat is another important grain crop of our country, and this is also the staple food of the northern part of the country. Second most important cereal crop है ये हमारी. The main food crop in north and northwestern part of the country, require cool growing season. अब wheat में एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, टेम्परेचर और रेनफॉल, टेम्परेचर wheat के ग्रोइंग और हार्वेस्टिंग में दोनों में डिफर होता है. एट टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ सोइंग, वीट के सोइंग के टाइम पर हमें टेम्परेचर जो है वो कूल चाहिए, दैट इज़ 10 to 15 डिग्री सेल्सियस. बट एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, राइपनिंग के लिए एक ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है, और हार्वेस्टिंग के टाइम पर टेम्परेचर जो है वो 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए. तो दिस इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ टेम्परेचर फॉर द वीट क्रॉप. Okay, rainfall, it required 50 to 70 centimeter annual rainfall, and major wheat growing areas are Ganga plain, we can say our northern plains, black soil region in Dakkan, Punjab, Haryana, UP, Bihar, Rajasthan. These are the major wheat producing areas. Okay, now come on the next, the wheat producing areas map. Next is about millets. The major millets that grow in our country is ज्वार, बाजरा and ragi. ठीक है, they are having their own nutritious value.
मिलेट्स की बच्चे ये एक लेस इम्पॉर्टेंट सीरियल्स हैं, बट इनकी अपनी न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ होती हैं. रागी इज़ रिच इन आयरन, कैल्शियम. ठीक है, ऐसे ही हमारे पास जो रागी है वो हम रफेज के रूप में यूज़ करते हैं. इट इज़ ए क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन एंड ग्रो वेल इन रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड शेलो सॉइल्स. ठीक है, रागी प्रोड्यूसिंग एरियाज़ में हमारे पास उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश हैं. ज्वार थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है इंडिया की विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन. ठीक है, इट इज़ द रेन फेड क्रॉप ग्रोन इन मॉइस्ट एरिया. बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल एंड शेलो ब्लैक सॉइल. Rajasthan is the largest producer of bajra, followed by Uttar Pradesh, Maharashtra, Gujarat and Haryana. So this all is about your millets. ये हैं हमारे millets. कौन कौन से? रागी, ज्वार एंड बाजरा. ओके, तो ये हैं हमारे सीरियल क्रॉप्स. यहाँ पर मैंने आपको अपने सीरियल क्रॉप्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं. द वन इज़ लेफ्ट, आई थिंक दैट इज़ मेज. द लेफ्ट वन इज मेज हेयर, जो हमारे पास रह गई, दैट इज मेज. यूज्ड एज बोथ फूड एंड फूडर. मेज मक्का जिसे हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं, इसका प्रयोग हम फूड में और फॉडर दोनों में करते हैं. मेजर खरीफ क्रॉप है हमारी. टेम्परेचर जो मेज के लिए रिक्वायर्ड है दैट इज 20 to 27 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज ग्रोज वेल इन द ऑलिवल सॉइल. स्टेट इज बिहार, दैट इज़ गुड फॉर क्रॉपिंग द मेज. ठीक है, इसके अलावा HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरीगेशन फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेज. ठीक है, तो ये है हमारे पास मेजर कंडीशन मेज की. नेक्स्ट इज यहाँ पर हमारी जो फूड क्रॉप्स हैं वो ओवर हो गई हैं. यहाँ पर अब आई एम डिस्कसिंग यू अबाउट द पल्सेस. Pulses are very important food for our country. और we can say कि अगर हम इंडिया की बात करें तो we are the largest producer of pulses, but we are also the largest consumer of pulses. हम अगर बहुत ज़्यादा दालें उगा रहे हैं तो हमारा कंट्री सबसे ज़्यादा दालें कंज्यूम भी कर रहा है. हमारे पास मेजर हमारे फूड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है पल्सेस. ठीक है, एज यू सी इन योर फैमिली दैट इन डेली फूड वी आर हैविंग अ पल्सेस. डेली हमारे फूड में कोई ना कोई पल्स ज़रूर होती है. ठीक है, तो दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड. एंड नाउ द pulses, the major thing that we must, why we have this major part of our food क्यों है? because these are the major source of protein. हमारी वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन का मेजर सोर्स है पल्सेस. मेजर पल्सेस ग्रोन इन इंडिया आर तुर, उड़द, मूंग, मसूर, पीज एंड ग्राम. ओके, अब पल्सेस वैसे तो थ्रू आउट द कंट्री ही ग्रो की जाती हैं, बट फिर भी जो मेजर एरियाज़ हैं लाइक मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. ठीक है, और पल्सेस जो हैं वो रोटेशन क्रॉप है. मतलब रबी और खरीफ के साथ हम रोटेशन में इस क्रॉप को उगाते हैं. that are very helpful to regain the fertility of the soil. सॉइल को की फर्टिलिटी को रीगेन करने में और रीस्टोर करने में भी पल्सेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं. वाई? बिकॉज दे आर हेल्प्स टू रीगेन द नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर. ठीक है, तो ये रोटेशन क्रॉप हैं पल्सेस. एंड पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन द ड्राई कंडीशंस. Okay, so this all is about your pulses. Okay, that's it for today. Next we will discuss in the next video. Till then, goodbye. Thank you.